Welcome to English Simplified, guys. Today I'm going to talk about, as you can see on my screen, prepositions. So prepositions may I'm not going to go into too much detail, but I'm going to focus on how to practice them, because there are more than 100, and I'll cover only few ones in this video so that I can show you how to practice them. So कुछ like maybe 12 or 13 मुझे practice करके बताने होंगे for the sake of creating this video. So smart and practical approach, I've already told you about this. I've often recommended you in my last videos that we have around 13 to 14 or maybe 15 16, I don't know, it's not a fixed number, set of prepositions which are important, जो कि daily life में use होते हैं. So we should not really worry about all the prepositions which are maybe more than 100. तो हम कुछ में perfection हासिल करें, that is much better, as I've already told you. And the second thing in this video that I'm going to cover is how to practice. That is more important. एक story बना के, as you can see on my screen, make a story using the prepositions. We will come to understand how to practice them. So आइए कुछ चुनिंदा हैं, some select ones which we can look at. two. अब two में you can see on my screen, two is used for destination and purpose. Destination का example है I go to post office. So post office destination है. So obviously we're going to use two here. So I go to post office. And second is purpose. I go to post office to open an account. अब purpose क्या है यहाँ पे? Account खोलना, opening an account. That is why I'm using to open an account here. So two के दो purpose हैं. And then we have a for के हम देख सकते हैं, we can see here purpose, destination, duration, इन तीनों को indicate करने के लिए for काम आता है. So purpose अगर हमें बताना हो, for से then the sentence can be, as you can see here, I go to post office for opening an account. account खोलने के लिए ये purpose है, इसलिए हम यहाँ पे for लगा रहे हैं. The difference is, to के केस में हमने first form of verb लगाई थी, to open an account, but for, in case of for, हमने ing लगाया, for opening an account. That is the only difference. Otherwise it remains same. How you make sentence or how you make sentence is different. Structure बदल रहा है, ing आ रहा है, but you can use it for purpose as it relates to for and to, both of them. Second है destination. For can be used for expressing destination. For example, I'm leaving for Faridabad. अब destination to से भी आया था, right? But the thing is, यहाँ पे हम I'm leaving for लगाते हैं, यानी कि for लगता है जो कि to में नहीं लगता है. That is the only difference. थर्ड जो है वो ड्यूरेशन है, ये वाला कॉमन नहीं है. सो आई एम गोइंग टू फरीदाबाद फॉर 2 weeks, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर. तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है. सो फॉर इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज़ ऑन. सिंपल है, लोकेशन, डेट और डेज के लिए. लोकेशन हमारी पेन इज़ ऑन द टेबल, तो ये लोकेशन है पेन की, तो ऑन द टेबल लगता है, इन द टेबल नहीं लगता है. कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं गाइस, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. कुछ बेसिक रूल्स होते हैं प्रीपोजिशंस के. हालांकि एक्सेप्शंस बहुत हैं, देयर आर मैनी एक्सेप्शंस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यहीं पे यूज़ होगा, बट देयर आर सर्टेन यूजेस, सर्टेन एरियाज वेयर वी कैन यूज़ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस. तो ये स्पेसिफिक जगह मैं बता रहा हूँ जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं. एक लोकेशन है ऑन का, कमिंग बैक टू ऑन. नेक्स्ट इज़ डेट एंड डेज. तो डेट के लिए आई विल गो टू मुंबई ऑन जून 30th. तो जून 30 डेट है, इसलिए हमने ऑन लगाया है, यहाँ पे इन नहीं लगता, ये बेसिक रूल है. एंड डेज़ के लिए भी मंडे ट्यूसडे, आई विल गो टू बैंक ऑन मंडे. तो मंडे में भी हम ऑन लगाएंगे, इन या एट नहीं लगाएंगे. सो रिमेंबर दैट. अगला है विदिन. विदिन इज़ यूज फॉर लिमिटेशन ऑफ टाइम एज वेल एज डिस्टेंस. एग्जाम्पल है, आई विल कम विदिन 10 minutes. मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊँगा. द रेलवे स्टेशन इज़ विदिन 5 kilometers फ्रॉम दिस प्लेस. रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है. सो विदिन इज़ इंडिकेटिंग a span, basically you can say. एक दायरा होता है जो, राइट, इट इज़ इंडिकेटिंग अ स्पैन ऑफ कंट्रोल. उस दायरे में चीज़ें आती तब हम विदिन यूज़ कर सकते हैं. नॉट जस्ट दिस, एक्चुअली वी कैन ऑल्सो यूज़ विदिन फॉर केसेस लाइक आई वॉन्ट दिस AC विदिन माई बजट. अब यहाँ पे टाइम भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, बट द पॉइंट इज़ विदिन इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक दायरा है जिसके अंदर अंदर हम इंडिकेट करने के लिए विदिन लगाते हैं. नेक्स्ट है अबाउट. अबाउट कंसर्निंग समथिंग है, और एस्टिमेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस है. कंसर्निंग समथिंग मतलब है किसी चीज़ के बारे में बात करना. आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी, मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बात कर रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट मे बी सलमान खान और वट एवर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. एस्टिमेशन ऑफ टाइम यानी कि एस्टिमेट लगाना. आई कम इन अबाउट 5 hours, यानी कि 5 घंटे के आसपास मैं आ जाऊँगा. एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस भी सेम है.
रेलवे स्टेशन इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है. सो अबाउट इज इंडिकेटिंग एस्टिमेशन. नेक्स्ट है बिसाइड. बिसाइड्स स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट. बिसाइड इज नेक्स्ट टू, यानी कि बगल में. ही लिव्स बिसाइड द बैंक, बैंक के बगल में हो रहता है. बिसाइड ऑफ बैंक नहीं आता है, दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक पीपल डू. बिसाइड दी बैंक आता है. नेक्स्ट इज बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब अपार्ट फ्रॉम. बिसाइड्स क्लोथ्स आई ऑल्सो बॉट परफ्यूम. कपड़ों के अलावा, क्लोथ्स के अलावा मैंने परफ्यूम भी खरीदा. इसमें भी कॉमन मिस्टेक होती है. बिसाइड्स ऑफ क्लोथ, बिसाइड्स फ्रॉम क्लोथ, ऐसा गलत होता है. यू जस्ट नीड टू से बिसाइड्स एंड देन द नाउन. इसमें कोई ऑफ या फिर आपको ऑन नहीं लगाना है. नेक्स्ट इज अक्रॉस, मतलब उस पार. ऑन द अदर साइड. द बैंक इज अक्रॉस द रोड. बैंक सड़क के उस पार है, नदी के उस पार है. अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द स्ट्रीट, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज. बट अक्रॉस ऑफ नहीं आएगा, अक्रॉस ऑन नहीं आएगा. टूवर्ड्स पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल. मॉल की तरफ जा रहा हूँ. मॉल ज़रूरी नहीं है मॉल जा रहा हूँ, राइट. नॉट नेसेसरीली आई एम गोइंग टू मॉल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल. मे बी आई माइट नॉट इवन गो देयर, राइट. सो टूवर्ड्स का मतलब वहाँ जाना नहीं है, उस तरफ जाना है. रिमेंबर दैट. फ्रॉम इज बिगनिंग एंड सोर्स. शुरुआत जो इंडिकेट होती है फ्रॉम से होती है. ही ट्रैवल फ्रॉम मुंबई, मुंबई से चेन्नई. सो ही विल वर्क फ्रॉम मंडे टू वेंसडे. इस सेंटेंस में मंडे से शुरू हो रहा है तो हम फ्रॉम लगा सकते हैं वहाँ पे. सो फ्रॉम इज यूज्ड फॉर बिगनिंग, नंबर वन. नेक्स्ट इज सोर्स. सोर्स मतलब स्रोत. इन हिंदी वी से इट. लाइट कम्स फ्रॉम सन. सन से लाइट आती है तो सन इज द सोर्स, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे. नेक्स्ट लास्ट टू हैं इन. इन इज़ फॉर इनसाइड समथिंग, सबको पता है. पेन इज इन द बॉक्स, ठीक है. एंड देन मंथ्स. मंथ्स आई गो इन द मंथ ऑफ जून. मैं जून के महीने में जाऊँगा तो ऑन एट नहीं आएगा, इन द मंथ ऑफ जून आएगा. ये एक बेसिक रूल है. एंड ईयर, आई कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2014, यानी कि 2014 में जाऊँगा. यहाँ पे एट और ऑन नहीं आएगा, इन ही आएगा. ये एक रूल है. सो रिमेंबर द बेसिक रूल्स. नेक्स्ट इज ऑफ. द लास्ट वन इज ऑफ. रिलेशन, क्वालिटी, रीजन में ये यूज़ होता है. इज़ द ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई है तो ऑफ लगेगा. ज़रूरी नहीं है ये लिविंग थिंग में ही आएगा. इट कैन बी दिस इज़ द रिमोट ऑफ दिस एसी. इस एसी का रिमोट है, वहाँ पे भी आप ऑफ लगा सकते हैं. यू कैन यूज़ ऑफ देयर. नेक्स्ट इज क्वालिटी. मैंगोज आर ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के मैंगो हैं. द शर्ट इज़ ऑफ टॉप क्वालिटी. रीज़न है ही डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट ऑन मंडे, तो ऑफ रीज़न में भी हम लगाते हैं. सिर्फ ऑफ नहीं लगाते हैं बट ऑफ भी लगाते हैं. आइए लेट्स मूव ऑन टू द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू प्रैक्टिस. अब ये एक स्टोरी है गाइस. यू कैन ऑलवेज मेक अ स्टोरी. आप हमेशा एक स्टोरी बना सकते हैं सारे के सारे प्रिपरेशन को प्रैक्टिस करने के लिए. एंड बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट वे, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रैक्टिस prepositions. Okay. A man went to a mall on Jan 4th 2020. एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब मॉल क्या है, इस सेंटेंस में डेस्टिनेशन है, सो विल यूज़ टू. जैसे कि मैंने बताया अभी, डेस्टिनेशन में हम टू यूज़ करते हैं. एंड देन वी हैव डेट. डेट में हम ऑन लगाते हैं. ऑन Jan 4th आएगा, इन नहीं आएगा, ठीक है. फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज ही स्टेड देयर फ्रॉम 5 PM to 8 PM. 5 से शुरू हो रहा है उसका स्टे, तो वहाँ पे फ्रॉम लगा दिया. जैसे कि बताया था मैंने अभी, वी यूज़ फ्रॉम टू इंडिकेट बिगनिंग. ही फिनिश्ड हिज शॉपिंग विद इन हाफ एन आवर. विद इन कब आता है? आई जस्ट सेड इट इज़ फॉर आई एम सॉरी, इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. यहाँ पे टाइम की एक लिमिटेशन है, आधे घंटे के अंदर अंदर. हमने यहाँ पे विद इन लगा दिया. एंड देन सैट इन अ कैफ़े. इन आपको पता ही है. फॉर 15 मिनट्स. फॉर कब लगता है? ड्यूरेशन के लिए. फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, for 1 hour, etc. etc. Next is he took muffins and chips besides coffee. अभी मैंने बताया था besides is apart from, के अलावा. तो कॉफ़ी के अलावा उसने muffins और chips भी लिए. Cafe manager gave him 50% discount because he was a friend of his brother. Off क्यों आता है? रिलेशन में आता है, राइट. तो उसके भाई का दोस्त था, friend of his brother, so that's why he is using off here. लास्ट है, ही स्पोक टू मैनेजर फॉर अबाउट 5 minutes एंड वेंट अक्रॉस अ ब्रिज टूवर्ड्स पार्किंग. फॉर अबाउट 5 minutes, अगेन ड्यूरेशन है तो हमने फॉर लगा दिया. 5 मिनट के लिए, हो सकता है 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, वी विल यूज़ फॉर. अबाउट भी एक एस्टिमेशन है, इफ़ यू रिमेंबर हमने किया था अभी. एंड वेंट अक्रॉस अ ब्रिज, ब्रिज के उस पार. तो अक्रॉस में हमने ऑफ नहीं लगाया, ऑन नहीं लगाया, हमने सिर्फ अक्रॉस ही लगाया है. एज आई टोल्ड यू, दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक पीपल डू. टूवर्ड्स पार्किंग we just saw. टूवर्ड्स का मतलब in the direction of, यानी कि पार्किंग की तरफ हो गया. Now one thing very important, incorrect version. इस slide में you can see I have noted down all the possibilities where these prepositions can be used in
इनकरेक्ट मैनर। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, अ मैन वेंट टू अ मॉल इन Jan 4th 2020। यहाँ पे डेट में इन लगाया है जो कि कॉमनली मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, तो ये इन नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे क्रॉस भी किया है यानी कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है ही स्टेट देयर फ्रॉम लगता ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम ही नहीं लगाते हैं, तो ही स्टेट देयर 5 PM to 8 PM बोल देते हैं जो कि गलत है, इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। एंड ही फिनिश्ड हिज शॉपिंग विद इन हाफ एन आवर तो ठीक है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है सैट इन अ कैफे टिल 15 मिनट्स, टिल यहाँ पे गलत है। ये जो टिल है ये यहाँ पे इस सेंस में यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो टिल का यूज़ गलत है, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है। ही टुक मफिन्स एंड चिप्स बिसाइड्स ऑफ कॉफ़ी, बिसाइड्स में ऑफ नहीं लगता है, एज आई जस्ट टोल्ड यू 2 minutes बैक, हम ऑफ नहीं लगाते हैं, बिसाइड्स कॉफ़ी ही लगाते हैं, सीधा नाउन आता है। एंड देन वी हैव दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला, कैफे मैनेजर गेव 50% डिस्काउंट बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज ब्रदर, तो ठीक है। नेक्स्ट इज ही स्पोक टू मैनेजर फॉर अबाउट 5 minutes एंड वेंट अक्रॉस ऑफ ब्रिज, अगेन अक्रॉस में ऑफ नहीं लगेगा, अक्रॉस के साथ सीधा नाउन आएगा, अक्रॉस द ब्रिज। टूवर्ड्स टू पार्किंग भी नहीं आएगा, टूवर्ड्स पार्किंग आएगा। सो दीज आर दी मिस्टेक्स विच वन कैन डू वाइल यूजिंग प्रीपोजिशन। इसीलिए आई जस्ट टोल्ड यू, आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर लास्ट 10 minutes कि आप स्टोरी बनाइए, दैट इज़ द प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रीपोजिशंस। नाउ कॉमन क्वेश्चन इज, बाकी सबका क्या, आपने तो 13-14 प्रीपोजिशंस बता दिए, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस? नाउ as I said, we have around 13 to 14 which are commonly used in daily life, but इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, I definitely agree to it, जो हमें चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो में I just didn't want to take a lot of time, it would have been a long video, I just wanted to select some of them, but for rest of them what you can do is check the meaning in dictionary, okay, and then check the related sentence, because sentence when you check, right, then you understand how to use that particular grammatical device and then include in a story the way we just did, जैसे कि अभी हमने किया है। For example, under एक preposition है, इसका meaning है as per this snapshot which I have it here, in or to a position below or lower than something else, often so that one thing covers the other। अब इसका example है he hid under the bed, right। अब इस example में कोई गड़बड़ नहीं है, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस बिकॉज ऑब्वियसली वी आर यूजिंग कैम्ब्रिज है, डिक्शनरी है, रिलायबल है। गलती इसमें क्या करते हैं लोग, ये देखिए ये गलती करते हैं, हिड अंडर ऑफ द बेड, इसमें ऑफ नहीं लगता है, तो करेक्ट क्या होगा, अंडर द बेड, जैसे कि ऊपर भी दिया है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द स्नैपशॉट, ही हिड अंडर द बेड इज़ द करेक्ट सेंटेंस। सो माई पॉइंट इज़ गाइज, डू यू थिंक इट इज़ इनफ टू नो द मीनिंग? सिर्फ मतलब जान लेने से क्या आप उस प्रीपोजिशन को यूज़ कर पाओगे? नो, यू नो दिस वीडियो प्रूव्स दैट यू नीड टू मेक अ स्टोरी सो दैट वी कैन प्रैक्टिकली सी कि कैसे वो प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो टॉप 13 जो हैं, टॉप 14 जो हैं, वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, बट यू कैन सेलेक्ट मे बी 10 मोर, यू नो 15 मोर एज यू थिंक माइट बी रिक्वायर्ड, वट एवर इज़ दैट नंबर, यू जस्ट प्रैक्टिस देम थ्रू अ स्टोरी, दैट इज़ द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम। So guys, before I leave, some coaching slots available. I have some time with me. You can call me and find out from me what time do I have, and we'll try to adjust. You have already seen the way I teach. I don't think there should be an issue with that. These are my details related to, you know, how you can contact me. Number hai, this is for WhatsApp also, and then you can check Facebook page, Instagram page. All these will have these videos as well. Thank you for watching, and please comment कीजिए, subscribe कीजिए, and let me know, you know, what else would you like to see in my YouTube channel, and it is likely, हो सकता है कि मैं कुछ videos और बनाऊँ prepositions के, but I can't really comment right now, I can't really commit right now, but I'll see as per the response from you guys. But as far as usage is concerned, as I just said, this is the way to practice. You know, सिर्फ मतलब जानने से बात नहीं बनने वाली, you just have to make story. Thank you very much guys, it was awesome talking to you once again, bye bye.